कल हम लोगों ने वेव्स ऑप्टिक्स स्टार्ट किया था। हम लोगों ने हाइजेंस प्रिंसिपल पढ़ा था। इंटरफेरेंस क्या होता है, कैसे उसका इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड वेरी करता है दो वेव जब इंटरफेयर करता है उसमें। आज हम लोग यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पहले करेंगे। So Young's double slit experiment in 1802, Thomas Young devised a method to produce a stationary interference pattern. This was based upon division of a single wavefront into two. These two wavefronts acted as if they emanated from two sources having a fixed phase relationship. Hence, they were allowed to interfere. Stationary interference pattern interfere and stationary interference pattern was observed. In Young's interference experiment, single diffracted light diffracted from pinhole S0 encounters pinholes S1 and S2 in screen B. Light diffracted from these two pinholes overlaps in the region between screen B and the viewing screen C, producing an interference pattern on screen C as shown below. The geometry of experiment is simple. Parallel wavefront of monochromatic waves are incident on two identical narrow slits, each of width A separated by a distance D. The slit widths and their separation are of the order of the wavelength of the incident monochromatic light. So monochromatic light, after passing through two slits S1 and S2, act as coherent sources of light waves that interfere constructively and destructively at different points on the screen to produce a interference pattern. तो यहाँ पर से एक पैरेलल वेव फ्रंट्स आती है। इसमें से जो पैरेलल वेव फ्रंट आएगा वो यहाँ पे और यहाँ पे है ना पहुंचेगा, और ये जो दोनों स्लिट्स हैं, इनका जो विड्थ है, ठीक है, ऑफ विड्थ ए, इन दोनों का विड्थ ए है, एंड दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस डी, है ना, दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस डी। अब the slit widths and their separation are of the order of wavelength of incident light. तो ये monochromatic light after passing through two slits S1 and S2 act as coherent sources. तो यहाँ पर से जब पास करेगा तो ये S1 और S2 coherent sources की तरह बिहेव करेंगे, और ये स्क्रीन पे इंटरफेरेंस पैटर्न बनाता है ना, जहाँ पे कि स्क्रीन पे कंस्ट्रक्टिवली और डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेगा डिफरेंट पोजीशंस पे, और वहां पे करस्पॉन्डिंग मैक्सिमा और मिनिमा बनाएगा। Now, analysis of interference pattern. So we have ensured in the above arrangement that the light waves passing through S1 is in phase with the passing through S2, है ना। S1 और S2 is in phase क्योंकि जो parallel wave front दोनों पे ये पहुंच रहा होता है और equally distant है, S0 S2 और S0 S1. So, however, the wave reaching P from S2 may not be in phase with wave reaching P from S1. तो S2 से जो P पे पहुंचेगा और S1 से जो P पे पहुंचेगा, they may not be in phase, because the latter must travel a longer distance to reach P than the former. तो S1 से जो P पे पहुंचेगा तो ये ज्यादा distance cover करता है as compared to S2P. So S1P is greater than S2P, right? We have already discussed the phase difference arising due to path difference. तो पाथ डिफरेंस की वजह से जो फेज डिफरेंस है उसका जो रिलेशन है वो ऑलरेडी हम लोग पिछली क्लास में किए थे, है ना। सो रिलेशन ये था, फेज डिफरेंस इज इक्वल टू phi is equal to 2 pi by lambda into delta p, path difference, और जो पाथ डिफरेंस है डेल्टा पी, दिस इज लैम्डा बाय 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस पाई। So we have already discussed the phase difference arising due to path difference. If the path difference is equal to 0 or is an integral multiple of wavelength, the arriving waves are exactly in phase and undergoes constructive interference.
ठीक है. So if the path difference is an odd multiple, very important, path difference is equal to 0 or an integral multiple of wavelength, 0 और n lambda के बराबर है path difference, the arriving waves are exactly in phase and undergo constructive interference. और यही अगर path difference is an odd multiple of half the wavelength, 2n plus 1 lambda by 2 के बराबर है, the arriving waves are out of phase and undergo fully destructive interference. Thus, it is the path difference delta x which determines the uh, intensity at point P. So path difference delta P is S1P minus S2P. So S1P minus S2P. अब देखो ये Y है, right? और so अब ये y plus d by 2 S1P अगर हम लोग को डिस्टेंस निकालना है, right? तो हम लोग ये डिस्टेंस जो S1P है दैट इज y प्लस डी बाई 2 प्लस डी स्क्वायर, राइट. ये हमारा d है, d, राइट. और इसके जो इससे है y प्लस डी बाई 2 का होल स्क्वायर कर देंगे और प्लस ऑफ डी स्क्वायर कर देंगे. सो ये जो डिफरेंस है और S1P और S2P का जो डिफरेंस है, राइट, तो उसको हम लोग y प्लस डी बाई 2 प्लस डी स्क्वायर माइनस वाई माइनस डी बाई 2 का प्लस डी स्क्वायर ऐसे करके करते हैं. मतलब बेसिकली ये जो d है ना, ये हम लोग जो इधर से ये जो d बाई 2 है, उसके हिसाब से हम लोग देखते हैं बेसिकली इसका और इसका. ये S2P और AP वैसे डेरिवेशन का जरूरत नहीं है, ये दोनों इक्वल लेंथ का होता है. ये जो डिफरेंस है S1A का, दैट इज द पाथ डिफरेंस. तो यहाँ पे दिखेगा आपको. सो पहला अप्रोक्सीमेशन, इसमें दो अप्रोक्सीमेशन हम लोग लेके चलते हैं. पहला अप्रोक्सीमेशन है कि कैपिटल D इज वेरी वेरी ग्रेटर देन D. मतलब अगर आप ये हमारा जो D का वैल्यू है स्मॉल d और ये हमारा कैपिटल D का वैल्यू, तो कैपिटल D इज वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल d. पहला अप्रोक्सीमेशन है. वी कैन अप्रोक्सीमेट रे R1 एंड R2 आर बीइंग अप्रोक्सीमेटली पैरेलल, ठीक है, एट एंगल थीटा टू द प्रिंसिपल एक्सिस. S1P माइनस S2P यहाँ पे हम लोग मानते हैं ये जो S1P माइनस S2P इज इक्वल टू ये जो डिफरेंस बच गया S1A, ये पॉइंट A था, ये S1 था, तो ये S1A के बराबर हो गया. सो ये S1 S2 जो है, राइट, S1 S2 साइन थीटा, राइट, विल गिव यू द पाथ डिफरेंस. सो पाथ डिफरेंस इज D साइन थीटा. अब अप्रोक्सीमेशन 2 क्या है? इफ थीटा इज स्मॉल तो उस केस में साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू टेन थीटा, तो ये y बाय डी हो जाएगा. मतलब देखिए ये हम लोग d माने ये थीटा है, राइट, ये एंगल थीटा है. सो ये हमारा 90 माइनस थीटा हो जाएगा. इसको हम लोग, ठीक है, सो ये 90 माइनस थीटा है और ये हमारा फिर से थीटा हो जाएगा. इसको हम लोग थीटा एज्यूम करते हैं, तो ये थीटा हो जाएगा. तो ये तो d cos थीटा है. ये जो डिस्टेंस है S1A, ये हमारा d साइन थीटा के बराबर हो जाएगा, जिसको हम लोग अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं d tan थीटा के बराबर. और जो tan थीटा है हमारा, यहाँ पर से देखो tan थीटा y बाय कैपिटल D होता है. सो दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू d इंटू y बाय कैपिटल D. यही चीज यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है. थीटा इज स्मॉल, ये y, तो पाथ डिफरेंस क्या हो गया? डी वाई बाय कैपिटल D. ये हमारा पाथ डिफरेंस हो गया. अब देखो हम लोग जो मैक्सिमा और मिनिमा, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो पाथ डिफरेंस था हमारा, दैट इज इक्वल टू, दैट शुड बी इक्वल टू n लैम्डा, जो हम लोग अभी पढ़े भी थे कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ होना चाहिए. सो n लैम्डा के बराबर हो गया, मतलब y इज इक्वल टू n लैम्डा कैपिटल D बाई D.
सो n इज इक्वल टू 0 करस्पॉन्डिंग टू सेंट्रल मैक्सिमा हो गया। ये इससे आता है फेज डिफरेंस phi इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इंटू, जो हमारा फेज डिफरेंस है सो 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस हो गया। और अब ये देखो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कॉस फाई मैक्सिमम क्या होना होगा जब फाई 0 होगा या फाई 2 पाई का मल्टीपल होगा, ठीक है। तो अब ये 2 पाई n इंटू 2 पाई के बराबर होगा, तब मैक्सिमा होगा। तो अब 2 पाई कट गया, लैम्डा इधर आ गया, तो n लैम्डा के बराबर डेल्टा p हो जाएगा, राइट, तब मैक्सिमा होता है। तो n लैम्डा के बराबर जो फेज डिफरेंस, सॉरी पाथ डिफरेंस है, तब मैक्सिमा होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और उस केस में इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, n लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d। तो ये हमारा y का वैल्यू है, राइट। तो इस y के वैल्यू के लिए, मतलब अगर हम स्क्रीन पे बात करें तो सेंटर से कितने डिस्टेंस पे हमारा मैक्सिमा आकर करेगा, वो हम n लैम्डा d बाई डी पे मैक्सिमा आकर करेगा, मतलब n 0 पे, है ना, मतलब y इज इक्वल टू 0, बिल्कुल सेंटर वाला जो लाइन है वहां पे सेंट्रल मैक्सिमा होता है। n इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 पे लैम्डा d बाई डी, जो y का डिस्टेंस होगा सेंटर पॉइंट से, वहां पे हमारा फर्स्ट मैक्सिमा होगा, एंड सो ऑन। और मिनिमा के लिए अभी हम लोग देखे थे पाथ डिफरेंस इज 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। यहाँ पे n का वैल्यू 1 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 लिखते तो n का वैल्यू 0 से स्टार्ट करते। Excuse me. हाँ, तो n का वैल्यू अगर 0 से स्टार्ट करते तो ये यहाँ पे जब हम लोग 2n प्लस 1 करेंगे तो वहां पे n इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करते हैं ऑड मल्टीपल्स के लिए। और जब 2n माइनस 1 यूज करते हैं तो मतलब दोनों चीज ऑड को रिप्रेजेंट करता है, 2n प्लस माइनस 1 दोनों रिप्रेजेंट करता है। जब प्लस लेते हैं तो n को 0 से स्टार्ट करेंगे, और जब माइनस लेंगे तो n को 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे जो डेल्टा पी है ऑड मल्टीपल्स ऑफ लैम्डा बाई 2, मतलब लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2 एंड सो ऑन। सो यहाँ पे जो y का वैल्यू होगा दैट विल बी इक्वल टू 2n माइनस 1 लैम्डा d बाय 2d। ये डिफरेंट पोजिशंस ऑफ मिनिमा है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और डिफरेंट पोजिशन ऑफ मैक्सिमा है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब फ्रिंज विड्थ अगर हम देखें तो यहाँ पे इस फिगर में बहुत अच्छे से क्लियर होगा। देखो ये हमारा सेंट्रल मैक्सिमा है, ठीक है, ये फर्स्ट मिनिमा और ये फर्स्ट मिनिमा इधर। तो फर्स्ट मिनिमा से फर्स्ट मिनिमा नीचे से ऊपर तक ये हमारा जो है ना, इसको हम लोग जनरली फ्रिंज विड्थ, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस इज नोन एज फ्रिंज विड्थ। तो ये फ्रिंज विड्थ हो गया, दो डार्क के बीच में, ये दो डार्क के बीच में फ्रिंज विड्थ हो गया। या फिर ब्राइट के बीच में करना है तो फर्स्ट और सेकंड के बीच में, या सेंट्रल और फर्स्ट के बीच में, ये सब फ्रिंज विड्थ को रिप्रेजेंट करेगा। सो the distance between two successive bright or dark fringe known as fringe width। देखो यहाँ पे और अच्छे से क्लियर है। तो यहाँ पे ये देखो सेंट्रल सेंट्रल ब्राइट है, x इज इक्वल टू 0 पे। सेंट्रल ब्राइट से फर्स्ट ब्राइट वाला जो डिस्टेंस है ये हमारा, ठीक है, ये हमारा फ्रिंज विड्थ है फर्स्ट ब्राइट से सेकंड ब्राइट के बीच में। और उसके अलावा ये जो डिस्टेंस है फर्स्ट डार्क और सेंट्रल ब्राइट के बीच का जो डिस्टेंस, ये वाला जो डिस्टेंस है, ये बीटा बाई 2 के बराबर, राइट। सो जो फ्रिंज विड्थ है दैट इज एक्स एन प्लस 1 माइनस एक्स एन, मतलब कि हम लोग को फर्स्ट मतलब दो ब्राइट फ्रिंजेस के बीच का हम लोग को डिफरेंस निकालना है, तो n प्लस 1 लैम्डा डी बाई डी,
माइनस एन लैम्डा डी बाई डी। भाई nth ब्राइट फ्रिंज कहाँ पे पोजीशन होगा, एन लैम्डा डी बाई डी पे, और n प्लस वनथ ब्राइट फ्रिंज जो है n प्लस वन लैम्डा डी बाई डी पे होगा। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा दैट इज लैम्डा डी बाई डी, ये हमारा फ्रिंज विड्थ होता है। क्लियर है बच्चों? यस सर। ठीक है, तुम दो डार्क फ्रिंज के बीच में भी डिस्टेंस निकाल सकते हो। ब्राइट फ्रिंज वाले में कैलकुलेशन थोड़ा कम है, वहां पे 2n माइनस वन लैम्डा डी बाई डी ऐसे करके स्टार्ट करना है, लैम्डा डी बाई 2d। तो बेसिकली 2n माइनस वन लैम्डा डी बाय 2d, ये एक हो गया, और दूसरा है 2n प्लस वन लैम्डा डी बाई 2d। इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो ये भी हमारा फिर से लैम्डा डी बाई स्मॉल डी फ्रिंज विड्थ के बराबर ही आएगा। यहाँ पे हम लोग दो ब्राइट फ्रिंज के बीच का डिस्टेंस निकाले हैं, यहाँ पे अगर दो डार्क फ्रिंज के बीच का डिस्टेंस निकालोगे तो वो भी सेम आएगा। क्लियर है बच्चों? करके देख सकते हैं हम लोग। 2d को कॉमन ले लो तो ये क्या हो जाएगा, 2n प्लस वन माइनस 2n प्लस वन इंटू लैम्डा डी बाई 2d। 2n माइनस 2n कट गया, 1 प्लस वन 2 कट गया, इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई स्मॉल डी। आया समझ में? यस सर। इसके बाद एक एंगुलर फ्रिंज विड्थ एक कॉन्सेप्ट होता है। एंगुलर फ्रिंज विड्थ इज इक्वल टू बीटा बाई डी, मतलब लीनियर फ्रिंज विड्थ को डी से डिवाइड कर देंगे तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ निकल जाएगा। अल्फा इज इक्वल टू, है ना, बीटा का वैल्यू लैम्डा डी बाई डी होता है। तो बीटा इज लैम्डा डी बाई डी, और इंटू 1 बाई डी कर दोगे तो लैम्डा बाई डी। अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा बाई डी हो गया। ठीक है। तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ मान लो ये सेंटर मैक्सिमा की हम बात करें, तो यहाँ से ये जो डिस्टेंस है, राइट, तो जैसे फर्स्ट डार्क और ये फर्स्ट डार्क तक जाना है हम लोग को, तो ये फ्रिंज विड्थ जो हमारा है बीटा, फ्रिंज विड्थ जो बीटा है दिस इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी होता है। ठीक है, अब ये अल्फा बहुत स्मॉल है, राइट, तो tan अल्फा अप्रोक्सीमेटली इसको कर देते हैं, तो tan अल्फा वही दिस डिस्टेंस बाय मतलब बीटा अपॉन कैपिटल डी करके निकल जाता है। तो बीटा अपॉन कैपिटल डी इज लैम्डा बाई डी। दिस इज एंगुलर फ्रिंज विड्थ। Now distance of nth bright fringe from the central bright fringe। तो जो हमारा फ्रिंज विड्थ है, सो दैट इज लैम्डा डी अपॉन डी, राइट, उसको n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंजेस n बीटा निकल जाएगा। डिस्टेंस बिटवीन n1 and n2 ब्राइट फ्रिंजेस इज xn2 minus xn1, so n2 lambda d by d minus n1 lambda d by d, तो n2 minus n1 into बीटा कर देंगे, निकल जाएगा। Distance of mth dark fringe from central fringe, so mth dark fringe is 2m minus 1 lambda d by 2d। ठीक है, distance of nth bright fringe and mth dark fringe, तो nth ब्राइट और mth डार्क के बीच में, nth ब्राइट का ये हो गया, mth डार्क का ये हो गया, दोनों का डिफरेंस निकाल लोगे तो हमें वैल्यूज निकल जाएगा ना। बेसिक चीज है कि तुमको ये जो
पैटर्न अच्छे से समझ में आया हुआ रहेगा ना, तो तुम कुछ भी वहां पे निकालना बहुत इजी होगा। तो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है एनालाइज करना, और ये जो फॉर्मूलेज हैं मैक्सिमा और मिनिमा के लिए, ये आपको याद होने चाहिए। Now, important points. If the whole apparatus of Young's double slit experiment is immersed in liquid of refractive index mu, then wavelength of light will decrease. Hence, fringe width beta will decrease in liquid and angular width will also decrease. So fringe width will decrease by mu times. So beta dash is equal to beta by mu हो जाएगा, ठीक है? Whole apparatus if it is dipped in a liquid of refractive index mu. With increase in distance between slit and screen, angular width alpha of maxima does not change. Fringe width beta increases linearly with d, ठीक है? तो फ्रिंज विड्थ को हम लोग क्या करते हैं, बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी अपॉन डी। तो डी अगर बढ़ाओगे तो बीटा लीनियरली इंक्रीज करेगा, बट द इंटेंसिटी ऑफ फ्रिंजेस विल डिक्रीज जितना दूर जाते जाएंगे। If an additional phase difference of pi is created in one of the wave, then the central fringe becomes dark. तो हम लोग कुछ किसी तरह से, अगर मान लो यहाँ पे कोई एक है ना, अलग से एक ट्रांसमिटिंग मीडिया रख दिए बीच में, जिससे एक फेज डिफरेंस हम लोग बाहर से एक्सटर्नली इंट्रोड्यूस कर दिए पाई, तो अब पाई फेज डिफरेंस से क्या हो जाएगा, सेंट्रल ब्राइट जो है सेंट्रल डार्क हो जाएगा। So when wavelength lambda 1 is used to obtain a fringe n1, at same point wavelength lambda 2 is required to obtain a fringe n2, then n1 lambda 1 is n2 lambda 2. ये इतना important नहीं है। Let's do some questions. अब यहाँ पे ना Young's double slit experiment performed with wavelength lambda is 5890 angstrom. The angular fringe width is 0.40 degree. What is the angular fringe width if the entire setup is immersed in water? So, हमारा angular fringe width is equal to alpha, which is equal to beta by d, which is equal to lambda by d. ठीक है. So now angular fringe width alpha in air is equal to lambda in air by d, and alpha in water is equal to lambda in water upon d. ठीक है. एंगुलर फ्रिंज विड्थ एयर में दे रखा है 0.40 डिग्री, डिवाइडेड बाय एंगुलर फ्रिंज विड्थ इन वाटर हम लोग को निकालना है, इज इक्वल टू लैम्डा एयर बाय लैम्डा इन वाटर. लैम्डा इन एयर इज 5890 एंगस्ट्रॉम और लैम्डा इन वाटर इज 5890 बाय म्यू. ठीक है. सो ये कैंसिल हो गया, म्यू ऊपर चला गया, is equal to mu, which is equal to 4/3 mu water. ठीक है. म्यू वाटर इज 4/3 हम लोग पुट कर लिए, तो देखो अल्फा वाटर इज इक्वल टू 3/4 इंटू 0.40 डिग्री, 0.30 डिग्री. आ गया समझ? समझ में
गया बच्चों? Yes. फॉर्म भरे तुम लोग? हैं जी बच्चों? Registration. हाँ, सर आज भरूंगा। आज कर लेना, क्योंकि जितना जल्दी करोगे उतना अच्छा रहेगा। तुमको तुम्हारे हिसाब से डेट्स मिलेंगे। ना तो लास्ट में लेना ना शुरू में लेना, बीच के डेट्स लेना, ठीक है? मतलब Yes. जैसे 23, 24, 25, 26 है क्या पहला, या कब से कब तक है, याद है क्या डेट्स? शायद 22 से। अच्छा, तुम लोग को हम भेजे थे ना इसमें। ये हमारा 23, 24, 25, 26 है, और फिर 15, 16, 17, 18 है, 27। चारों वाला ले लेना। अभी तुमको अपना एग्जाम पता नहीं है कब होगा, हो सकता है इस बीच में गैप ही हो, इस एग्जाम्स के बीच में, तो एग्जाम देने में कोई हर्ज नहीं है। तो आई विल सजेस्ट कि चारों सेशन के लिए फी पे कर लेना। दूसरा सजेशन ये है कि जैसे 23, 24, 25, 26 है, तो हमेशा 24th वाला, सेकेंड डे वाला लेना, फर्स्ट डे वाला मत लेना, ठीक है? तो 24th इसमें ले सकते हो, 16th इसमें ले सकते हो, 28th इसमें ले सकते हो, और 25th इसमें ले सकते हो, ठीक है? इनफैक्ट इसमें 5 दिन है लास्ट वाले में, तो तुम 26th वाला ले लेना, बीच वाला। उसका रीजन है 2-3, है ना। पहला रीजन ये है कि पहले जो ग्लिचेस वगैरह होते हैं वो सब ग्लिचेस सॉर्ट आउट हो जाता है। पहला सेशन में टेक्निकल ग्लिचेस आने के चांसेस रहते हैं, और उसमें तुम्हारा पेपर खराब हो जाएगा बिना बात, ठीक है? तो इसीलिए ऑलवेज बेटर कि 1-2 दिन हो जाने के बाद ही करना चाहिए, अपने आप को एग्जाम लेना चाहिए। दूसरा कि जो ऐसा कहा जाता है कि जो बीच वाले पेपर्स होते हैं वो थोड़ा ज्यादा इजी होता है, ठीक है? और अगर कोई टेक्निकल ग्लिचेस है तो तुमको दोबारा एग्जाम देने का मौका मिल जाएगा। अगर बीच में, लास्ट वाला भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि लास्ट में फिर दोबारा आपको मौका नहीं मिलेगा। क्लियर है बच्चों? Yes. ठीक है, तो ये चारों डेट्स का भर लेना, आज ही भर लेना, नहीं तो फिर डेट्स तुम्हारे पसंद के नहीं मिलेंगे, और सेंटर भी तुम्हारे पसंद का फिर नहीं मिलेगा, इधर उधर सेंटर भेज देगा, फिल हो जाता है ना। ज्यादा दूर सेंटर होगा तो वो गलत है ना, बहुत ज्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा एग्जाम के दिन, विच इज नॉट गुड। क्लियर है बाकी दोनों को भी, अन्वेषा एंड कुशल? Yes, sir. ठीक है, प्लीज फिल द फॉर्म टुडे। कुशल हो या नहीं हो, चलेगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन है, इन एन इंटरफेरेंस पैटर्न इफ द स्लिट विड्थ्स आर इन द रेशियो 1:9, ठीक है? मान लो स्लिट विड्थ का जो रेशियो है 1:9 है, देन फाइंड आउट द रेशियो ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम इंटेंसिटी। सो स्लिट विड्थ W1 by W2 is equal to 1/9। तो एक हम लोगों ने किया था, ठीक है? सो अगर हम लोगों ने किया था यहाँ पे I1 by I2, एक मेरे ख्याल से इसमें किया था या फिर इसमें था, CBSE में था, चेक कर लेता हूँ। दिया हुआ है,
हम लोगों ने किया था, पिछली क्लास में किया था कि I1 by I2 जो इंटेंसिटीज हैं उसका रेशियो इज इक्वल टू स्लिट विथ W1 by W2 इज इक्वल टू A1 स्क्वायर बाय AT स्क्वायर, इसका एम्पलीट्यूड का. So यहाँ पे कह रहा है the interference pattern, if the slit widths are in the ratio 1:9, then find out the ratio of minimum and maximum intensity. अच्छा, इसके अलावा एक और चीज था, तो यहाँ पे तो पहले हम लोग यहाँ पे इसके अलावा ये था कि I maximum by I minimum, minimum and maximum intensity निकालना. I minimum by I maximum is equal to A1 minus A2 divided by A1 plus A2 का होल स्क्वायर. ठीक है. सो अब हम लोग जो स्लिट विड्थ है का रेशियो दे रखा है W1 by W2 is equal to 1/9 is A1 by A2 का होल स्क्वायर. तो इससे आ जाएगा A1 by A2 is equal to 1/3 हो जाएगा, राइट. तो A1 minus A2 by A1 plus A2. अब देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं A2 is equal to thrice of A1. ठीक है, दिस इज गिवन. इसको हम लोग यहाँ पे यूज कर लेंगे. सो दिस इज A1 minus 3A1 A1 plus 3A1 का होल स्क्वायर minus 2A1 का होल स्क्वायर 4 और A1 plus 4 स्क्वायर 16. 1/16 1/4 हो गया. 1:4 का रेशियो हो गया. क्लियर है बच्चों? Yes. लिख लिया आप लोगों ने? Yes. 9th question है the intensity variation in the interference pattern obtained with the help of two coherent sources is 5% of the average intensity. Find out the ratio of the intensities of two sources. So कह रहा है intensity variation in the interference pattern. Intensity variation मतलब maximum और minimum के बीच में. Help of two is 5% of the average intensity. मतलब average से 5% ज्यादा और 5% कम. So मतलब I maximum by I minimum is 105 by 95. 5% का है ऊपर नीचे. एवरेज से 5% ज्यादा है मैक्सिमम का, 5% कम है मिनिमम का. ठीक है, एक्सक्यूज मी. द इंटेंसिटी वेरिएशन हो गया ये बेसिकली तुम्हारा मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में. 105 by 95 है, 5 से डिवाइड करोगे 21 by 19 आ जाएगा. फाइंड आउट द रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज ऑफ टू सोर्सेस. सो इंटेंसिटी ऑफ रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ टू सोर्सेस. अब देखो I maximum by I minimum is equal to A1 plus A2 by A1 minus A2 का whole square, right? This is equal to 21 by 19 और A1 plus A2 by A1 minus A2 is root under 21 by 19. ठीक है. Now this is इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लें, रूट 21 by 19 1.05 होता है. तो you have A1 plus A2 is 1.05 A1 minus 1.05 A2. इससे हमारा जो वैल्यूज है रिलेशन
So we have 2.05 A2 is equal to 0.05 A1. So A1 by A2, 2.05 by 0.05. So this is 41 by 1. तो ये A1 by A2 है. अब हमें I1 by I2 निकालना है. हमें पता है ये A1 by A2 का होल स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है. So 41 स्क्वायर मतलब 1681 by 1 हो गया. क्लियर है बच्चों? Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन है waves. So waves emitted by two identical sources produces intensity of k units at a point on a screen where part difference between these waves is lambda. Part difference जब lambda है तो intensity of k units. Right. Calculate the intensity at that point on the screen at which path difference is lambda by 4. तो हमें वहां पे इंटेंसिटी निकालना है जहां पे पाथ डिफरेंस जो है लैम्डा बाय 4. सो देखो पहले तो फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस. राइट. तो जब फेज डिफरेंस जब पाथ डिफरेंस लैम्डा है 2 पाई बाय लैम्डा इनटू लैम्डा कैंसिल कर देंगे. सो दिस इज इक्वल टू 2 पाई 2 पाई हो गया. ये पहला का फेज है, फेज डिफरेंस. और दूसरे वाले का जो 5 2 जब लैम्डा बाय 4 हो जाता है 2 पाई बाय लैम्डा इनटू लैम्डा बाय 4 करेंगे. सो विच इज इक्वल टू पाई बाय 2 हो जाएगा. ठीक. अब इंटेंसिटी पहले जो है के यूनिट्स कब था जब 2 पाई है. मतलब जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज टू आइडेंटिकल सोर्सेस है. राइट. तो मान लो उन आइडेंटिकल सोर्सेस का इंटेंसिटी आई नॉट है. तो I1 इज इक्वल टू I0 प्लस I0 प्लस 2 रूट I0 into I0 cos of phi. So this is 2I0 plus 2I0 cos of 2 pi. Cos 2 pi 1 होता है. टोटल 4I0 हो गया I1 का वैल्यू. दूसरा I2 is equal to I0 plus I0 2I0 square cos pi by 2. Cos pi by 2 0 होता है. I2 is equal to 2I0 हो गया. अब हम लोग को इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट I1 is equal to K. I1 by I2 is equal to K by I2. That is 4I0 by 2I0. So this means I2 is equal to K by 2.
k by 2 units. ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं. इलेवेंथ क्वेश्चन है, a beam of light. So beam of light consisting of two wavelengths, 6500 angstrom and 5200 angstrom, is used to obtain interference fringes in a Young's double slit experiment. ठीक है, तो दो वेवलेंथ है 6500 एंगस्ट्रॉम और 5200 एंगस्ट्रॉम का. दिस इज यूज्ड टू ऑब्टेन interference fringes in Young's double slit experiment. What is the least distance from the central maximum where the bright fringes due to both the wavelength coincide? The distance between the slits is 2 mm. मतलब small d is 2 into 10 to the power minus 3 meter. ठीक है, and distance between the plane of slits and the screen capital D is 120 centimeter, मतलब 1.2 मीटर हो गया. ठीक है, और लैम्डा 1 दे रखा है तुम्हें 6500 एंगस्ट्रॉम और लैम्डा 2 दे रखा है ये तुम्हारा 5200 एंगस्ट्रॉम. कह रहा है ऐसा क्या डिस्टेंस, व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम वेयर द ब्राइट फ्रिंजेस ड्यू टू बोथ कोइंसाइड. तो ब्राइट फ्रिंजेस जो दोनों से कोइंसाइड करेगा n लैम्डा d बाई डी होता है जो ब्राइट फ्रिंज का पोजीशन होता है. पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज, position of nth bright fringe is equal to yn, that is n lambda capital D by D. ठीक है, अब ये क्या है देखो, जो पहले वाले इसका वेवलेंथ का और दूसरे वाले वेवलेंथ का, लेट्स से पहले वाले का mth फ्रिंज कोइंसाइड कर रहा है दूसरे वाले के nth फ्रिंज से. सो लेट mth bright fringe of lambda 1 equal to 6500 angstrom coincides with so let mth bright fringe of lambda 1 6500 angstrom and the coincides with nth bright fringe of lambda 2 5200 angstrom.
सो इससे हम लोग लिखेंगे ym is equal to yn m lambda 1 capital D by small d n lambda 2 capital D by small d. कैपिटल डी स्मॉल डी दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा. सो इससे m by n is equal to lambda 2 by lambda 1. 5200 by 6500. 4 by 5 हो गया. सो 5m is equal to 4n. हम लोग को निकालना है डिस्टेंस बिटवीन द सॉरी लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम. तो लीस्ट डिस्टेंस के लिए हमारा ये जो m एंड n का वैल्यू 4 और 5 अगर हम लोग कर देंगे, देखो यहाँ पे 4k और 5k हो जाएगा. m इज इक्वल टू 4k और n इज इक्वल टू 5k. फॉर लीस्ट डिस्टेंस k का वैल्यू 1 ले लेंगे. पहला अकरेंस हम लोग को निकालना है जहाँ पे दोनों एक ही पॉइंट पे मीट कर रहा है. तो वहां पे ये m का वैल्यू 4 और n का वैल्यू 5 हो जाएगा. तो पहले का 4th और दूसरे का 5th जो है कंसाइड कर रहा होगा. अब डिस्टेंस हम लोग को निकालना है. ym इज इक्वल टू 4 टाइम्स लैम्डा m कैपिटल D बाय स्मॉल d. वैल्यूज पुट कर लो. 4 इंटू लैम्डा m मतलब 6500 एंगस्ट्रॉम. 4 इंटू 6500 एंगस्ट्रॉम इंटू एंगस्ट्रॉम को 10 टू द पावर -10 में कन्वर्ट कर लेंगे. कैपिटल D है 1.2 डिवाइडेड बाय स्मॉल d है 2 इंटू 10 टू द पावर -3. तो 3 2 5 ये 3 और 2 5 कट होके 10 टू द पावर -5 बचा. और ये 65 इंटू 4 ये कैंसिल. 130 इंटू 1.2 we'll get 130 into 1.2 156 होता है. तो 1.56 10 to the power -3 मीटर या फिर 1.56 मिलीमीटर हो जाएगा हमारे. सर हमने m की वैल्यू क्यों यूज की? इनका वैल्यू यूज कर लो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है. तब वहां पे 5200 n का वैल्यू 5 यूज करके यहाँ पे तुम सेम आएगा. 5 यूज करके ये 5200 एंगस्ट्रॉम है ना इंटू 1.2 बाय 2 इंटू 10 टू द पावर -3 करोगे सेम आएगा वैल्यू. ठीक है सर. Now next question. In a Young's double slit experiment, right,
डी का वैल्यू, कैपिटल डी का वैल्यू 1 मीटर है, इसका 1 mm है, लैम्डा 1/2 mm है. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट सेंट्रल मैक्सिमा एंड द स्क्रीन. ठीक है, तो ये देखो, पहले तो हम लोग यहाँ पे मान लो ये 2 है. तो यहाँ पे फर्स्ट सेंट्रल मैक्सिमा है. फर्स्ट एंड सेंट्रल मैक्सिमा, यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा है. तुमको ये डिस्टेंस निकालना है. डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड सेंट्रल मैक्सिमा ऑन द स्क्रीन. अच्छा, ये डिस्टेंस निकालना, ये डिस्टेंस निकालना है तुम्हारा. तो मतलब हम लोग को β/2 बेसिकली निकालना है. ठीक है, between the first and central maximum on the screen. हाँ ठीक, ठीक है. सो बीटा जो फ्रिंज वेट है, दैट इज इक्वल टू y1, ये सीधे निकाल लेंगे. y1 इज इक्वल टू लैम्डा d अपॉन स्मॉल d होता है. सो दिस इज 0.5 into 10 to the power minus 3. Capital D is 1 mm, 1 into 10 to the power minus 3. तो ये हमारा, दिस इज इक्वल टू 0.5 हो गया. तो 0.5 mm है ना, 10 to the power minus lambda d upon small d into 10 to the power. तो 0.5 मीटर हो जाएगा. उसके बाद फाइंड द नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन. कि कितने मैक्सिमा और मिनिमा हम लोगों को दिख रहे हैं, दिखेंगे स्क्रीन पे. ठीक है, सो जो मैक्सिमम पाथ डिफरेंस है, इसमें एक फॉर्मूला होता है बेसिकली. सो मैक्सिमम पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू डेल्टा पी मैक्स इज इक्वल टू डी. जो ये स्लिट के बीच का जो डिफरेंस है ना, डिस्टेंस, दैट मतलब उसके बराबर हमारा मैक्सिमम पाथ डिफरेंस हो सकता है. उसके बाद फिर हम लोग को मैक्सिमम मिनिमा प्रॉपरली नहीं दिखता है. पता नहीं इसमें था कि नहीं, आई डोंट थिंक इसमें था. ठीक है, ये लिख लेना कहीं पे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रिंजेस जो हमें दिखते हैं वहां पे. सो नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन. सो जो मैक्सिमम पाथ डिफरेंस जो हो सकता है वो 1 होगा. और हाईएस्ट ऑर्डर मैक्सिमा अगर हम लोग निकालेंगे कि कितने मैक्सिमाज हम लोग को दिखने हैं, तो हाईएस्ट ऑर्डर मैक्सिमा इज
n maximum is equal to d by lambda, d by lambda और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। सो देखो हमारा ये दे रखा है डेल्टा पी मैक्सिमम इज इक्वल टू डी इंटू 1 मिनिमम 1 मिलीमीटर। ना ये हमारा जो मैक्सिमम पाथ डिफरेंस है ये है, तो जो ऑर्डर होता है वहाँ पे जो फॉर्मूला करते हैं दैट इज एन लैम्डा। सो डेल्टा पी जो पाथ डिफरेंस होता है डेल्टा पी इज इक्वल टू एन लैम्डा है, राइट। तो अब डेल्टा पी हम कह रहे हैं डी के बराबर है मैक्सिमम, तो जो एन होगा वो डी बाय लैम्डा के बराबर होगा मैक्सिमम, राइट। तो वही चीज यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। सो एन मैक्सिमम इज डी बाय लैम्डा। ये कैलकुलेट करेंगे, डी का वैल्यू हम लोग को दे रखा है 1 mm 1 इंटू 10 टू द पावर -3 और लैम्डा 0.5 इंटू 10 टू द पावर -3 है, 2 हो गया। तो n का वैल्यू 2 हो गया। तो दो मैक्सिमा हम लोग को दिख सकते हैं यहाँ पे। तो टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा कितना होगा, फर्स्ट सेकंड इधर, फर्स्ट सेकंड इधर और एक सेंट्रल मैक्सिमा। सो टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा will be equal to 2 plus 1 plus 2। 2 ये जो सेंट्रल के ऊपर ये 2 और सेंट्रल के नीचे 2 और एक सेंट्रल वाला 1, तो 2 plus 1 plus 2 बेसिकली 5 हो गया नंबर ऑफ मैक्सिमा। और नंबर ऑफ मिनिमा अगर जब करना होगा तो यहाँ पे सेंट्रल पे तो होता नहीं है, तो नंबर ऑफ मिनिमा में बस 2 plus 2 विच इज इक्वल टू 4 ही हम लोग को मिनिमा देखेगा। तो बस ये ध्यान में रखो कि नंबर ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के लिए मैक्सिमम पाथ डिफरेंस जो है वो डी के बराबर होगा, और वहां से फिर हम लोग जो हाईएस्ट ऑर्डर मैक्सिमा जो पॉसिबल है वो कैलकुलेट करके निकालते हैं। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनोक्रोमैटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम is used in Young's double slit experiment with slit width दे रखा है। Distance between screen and slit is capital D. If intensity at the two slits are 4 I0 and I2 is equal to I0, है ना, दोनों स्लिट पे इंटेंसिटी अलग अलग है। We have to find the fringe width पहले। फ्रिंज विड्थ तो नॉर्मल फॉर्मूला है, बीटा इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। लैम्डा 5000 इंटू 10 टू द पावर -10 एंगस्ट्रॉम को कन्वर्ट कर लिया। कैपिटल डी 1 मीटर है, स्मॉल डी इज 1 इंटू 10 टू द पावर -3। सो 5 इंटू 10 टू द पावर -7, 5 इंटू 10 टू द पावर -4 हो गया मीटर, या 0.5 मिलीमीटर हो गया फ्रिंज विड्थ। सेकेंड पार्ट, डिस्टेंस ऑफ फिफ्थ मिनिमा फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा ऑन द स्क्रीन। y is equal to 2n minus 1 lambda capital D by 2d. So this is equal to, अब यहाँ पे हम लोग को फिफ्थ मिनिमा बोल रहा है 2 इंटू 5 माइनस 1, लैम्डा का वैल्यू 5000 10 टू द पावर -10, कैपिटल डी का वैल्यू 1 है, डिवाइडेड बाय 2d, 2 इंटू 10 टू द पावर -3। तो 10 माइनस 1 9 हो गया, ठीक है।
So 9 into 5000 into 10 to the power minus 10, 2 into 10 to the power minus 3. 336, 10 to the power minus 4 with a 9 by 2, 45 by 2. So 2.25 10 to the power minus 3 meter, 2.25 millimeter हो गया. ठीक है. Now intensity at y is equal to 1 by 3 meter. Right? तो यहाँ पे तो y is equal to 1 by 3 मीटर पे पहले हम लोग फेज डिफरेंस निकाल लेते हैं. तो पाथ डिफरेंस at y is equal to 1 by 3 mm is equal to जो डेल्टा p का वैल्यू है dy अपॉन कैपिटल D होता है. फॉर्मूला कैसे निकलता है? dy बाय कैपिटल D होता है पाथ. सो अब ये हम लोग वैल्यूज पुट करते हैं. d का जो वैल्यू है 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, y का वैल्यू है 1 by 3 into 10 to the power minus 3. Capital D का वैल्यू 1 है. So this is 1 by 3 10 to the power minus 6 meter. Right? Phase difference delta phi is equal to 2 pi by lambda delta p. So this is 2 pi by lambda into the value. इतना जरूरत ही नहीं था, ये ऐसे ही कट जाता. चलो कोई नहीं. वन बाय 3 10 to the power minus 6 हो गया. वैल्यू पुट करेंगे 2 पाई बाय लैम्डा. लैम्डा का वैल्यू 5000 एंगस्ट्रॉम दे रखा है. 5 into 10 to the power minus 7 into 1 by 3 into 10 to the power minus 6. ट्वेंटी पाई बाय 15 फेज डिफरेंस हो गया. तो 5 4s and 5 3s 4 पाई बाय 3 हो गया फेज डिफरेंस. जब हम लोग को फेज डिफरेंस पता चल गया, ठीक है, अब यहाँ पे 4 पाई बाय 3 तक निकाल लें. इसके आगे हम लोग यहाँ तक लिख लिया तुम लोगों ने? यहाँ तक लिख लिया बच्चों? यस सर. यस सर. तो 4 पाई बाय 3 जब हम लोग को फेज डिफरेंस आ गया, अब हम लोग यहाँ पे इंटेंसिटी निकालते हैं. So resultant intensity I will be equal to I1 plus I2 plus 2 root under I1 I2 cos of phi, मतलब phase difference जो भी है. So this is I1 is 4 I0 plus of I0 2 times root under 4 I0 square into cos of delta phi. So cos of जो 4 पाई बाय 3 था, पाई प्लस पाई बाय 3 है ना. थर्ड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव होगा और 60 डिग्री 1 by 2 माइनस 1 by 2 हो जाता है. तो ये हो जाएगा 5I0 माइनस ऑफ 2 into 2 4 और 2 से कट गया तो
2 I naught. 5 I naught minus 2 I naught, which is equal to 3 I naught. ये intensity at y is 1 by 3. Distance of the 100th maxima and 1000th maxima and 5000th maxima, ये हम लोग को निकालना है. ठीक. तो यहाँ पे देखो, ये जो है ना, दिस 1000 बहुत बड़ा नंबर है. तो यहाँ पे जो हम लोग d बाय लैम्डा पहले निकालते हैं, सो अगर हम लोग जो डेरिवेशन कर रहे थे वहां पे when y was very very less than d, तब हम लोग अप्रोक्सीमेशन करते थे. यहाँ y is not very very less than d, तो उस केस में जो हमारा जो पाथ डिफरेंस होगा वो d साइन थीटा वाला यूज करते हैं हम लोग यहाँ पे. तो पहले d बाई लैम्डा निकालते हैं. d का वैल्यू है 1 into 10 to the power minus 3, and this is 5 into 10 to the power minus 7, 10 to the power 4 by 5, so this is 2000. ठीक है. और n का जो वैल्यू है, this is equal to 1000, right? So देखो यहाँ पे जो n है, this is not very, since n is not very very less than lambda d by lambda, okay, hence delta p is equal to yd upon capital D cannot be used. ठीक है. तो यहाँ पे जो हम लोग फेज डिफरेंस यूज करेंगे, डेल्टा पी इज इक्वल टू डी साइन थीटा, ये वाला हम लोग यूज करते हैं. ठीक है. सो डेल्टा पी इज इक्वल टू डी साइन थीटा मस्ट बी यूज्ड. तो यहाँ पे ये कैच है, ये आपको देखना होगा कैलकुलेट करके हमेशा. तो डेल्टा पी डी साइन थीटा, ये जो फॉर्मूला था ये हम लोग यूज करेंगे. अब डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा होगा फॉर मैक्सिमा. सो इससे हमारा आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा बाय डी, दैट इज 1000 लैम्डा 5000 10 to the power minus 10 1 10 to the power minus 3. So this is 0.5, that is 1 by 2. Theta is equal to 30 डिग्री हो जाएगा. So theta 30 डिग्री हो गया. अब y is equal to जो होगा कैपिटल D into tan theta हो गया. So tan theta 1 by √3, तो D upon √3. D का वैल्यू 1 है, 1 upon √3 मीटर. उसी तरह 5000 वाला भी वैसे ही निकालेंगे. 5000 वाला डिस्टेंस ऑफ 5000 मैक्सिमम बोला है यहाँ पे, तो मैक्सिमम जो नंबर ऑफ मैक्सिमा हो सकता है वो कितना हो सकता है? 2000 हो सकता है. डी बाई लैम्डा करके हम लोगों ने निकाला है, राइट. तो सिंस मैक्सिमम हाईएस्ट ऑर्डर मैक्सिमा, अभी पीछे क्वेश्चन में भी हम लोग देखे थे, हाईएस्ट ऑर्डर मैक्सिमा जो पॉसिबल है दैट इज गिवन बाय डी बाय लैम्डा का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, which is 2000. So this implies 5000th maxima
is not possible. क्लियर है बच्चों? सर ये d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा कौन सा फॉर्मूला है? ये शुरू में ही हम लोग जब ये कर रहे थे ना, जो दो अप्रोक्सीमेशन हम लोग लिए थे, एक मिनट में देखा था। ये हमारा पाथ डिफरेंस जो हम लोगों ने कैलकुलेट करके निकाला था वो d sin थीटा करके निकाला था। यहाँ पर ये जो डिस्टेंस था ये थीटा निकला था, तो ये जो S1A था ये d sin थीटा के बराबर निकला था, ये d। ठीक है सर। ठीक है, ये तब ही ले सकते हैं जब कैपिटल D जो है स्मॉल d से बहुत बड़ा होता है तब, और जब y भी कैपिटल D से बहुत छोटा है उस केस में पाथ डिफरेंस dy by d लेता है। यहाँ पे y इज नॉट वेरी वेरी लेस देन d, इसीलिए हम लोग ये यूज कर रहे थे, ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे थे। ठीक है, यस। बस एक ये पॉइंट है जो तुम लोग को अलग से करना है, जो हम लोग ने क्वेश्चन में नहीं किया है, कि हाईएस्ट ऑर्डर, ये लिख लेना कहीं पे फॉर्मूला ना शुरू में ही, हाईएस्ट ऑर्डर मैक्सिमम यहाँ पे लिख देता है। अपनी कॉपी में लिख लो, जब नोट्स बनाओगे, नोट्स बनाते हो कि नहीं पता नहीं तुम लोगों का, बट नोट्स बनाना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस करते समय भी बहुत सारा आता है। हाईएस्ट ऑर्डर मैक्सिमा, आज दो क्वेश्चन हम लोग को मिला है इस पे। हाईएस्ट ऑर्डर मैक्सिमा इज n मैक्सिमम इज इक्वल टू d अपॉन लैम्डा का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। एक हम लोग को मिला था जिसमें निकालना था कि टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा कितना बन रहा है, टोटल मिनिमा कितना बन रहा है, और दूसरा ये मिला था। क्लियर है बच्चों? यस। चलो आज हम लोग यहीं पे रुकेंगे, है ना? इसके आगे हम